वो भी मैं नोट कर लूं इसी में. Okay. No, I have gone through the syllabus and it seems to be very elaborative also. The main point is that whether your colleges are ready to have enough infrastructure to adopt this syllabus. If it's there, you can go ahead with it, no problem. The only thing which I wanted to suggest is, in third year, last sixth semester, therapeutic nutrition paper is there. I think you have got the paper. 6 Yes, yes, sir. yeah. In that, instead of having different types of feeding, it should be mode of feeding. Okay, last one, the last paper. Yes, it should be mode of feeding. Mode of feeding. In mode of feeding, there are two types of feeding. One is enteral and the other is parenteral. There is no feeding like tube feeding or oral feeding. Tube feeding and oral feeding are the ones which comes under the enteral feeding. It is one type of feeding. It's not mode. Okay. If it is possible, just go ahead with it. Otherwise, Mode of feeding or types of feeding instead of that. yeah, types of feeding. Mode of feeding. Mode of feeding. Mode of feeding. Nirmala madam, please note down that this change. Note kar rahe, okay. Mode of feeding. In a separate sheet, all the suggestions be noted down in a separate sheet, okay? Yeah, if possible, you do it, because the mode of feeding, internal and parenteral, there are two types of mode of feeding. In that feedings comes the oral feeding, tube feeding, gastrointestinal feeding, everything. So if it's possible, you just go ahead with it. Otherwise, it's okay. Just make it. Okay. It is mode of feeding or kinds or types of feeding. What the mode is there? It is mode, not type. Mode of feeding. Okay. Actually, sir, this is mode means कि वो ट्यूब से फीडिंग हो रहा है या orally हो रहा है, इसीलिए वो mode है. Okay. All right. So you people being types are mode. You can change accordingly. Okay. Any other suggestion? Then suggestions from other experts be invited. From Gorakhpur University, one of the experts is there. From Gorakhpur University. From Gorakhpur University, Dr. Ajay Shukla is there. So, Shukla sir, any suggestions? आपकी कोई राय है इसमें? हेलो. अनम्यूट करिए अपने आप को, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली. Our third expert is not able to join till now. तो मैं कोशिश कर रही हूँ. Okay. Then other experts from Kanpur. So many experts are from Kanpur. You should also invite them one by one. Kanpur ke experts, sir, we already had a meeting yesterday. So we have noted down all the changes. Okay, that's a different thing. But I can read all the changes if you permit me. But madam, that has to be taken in the discussion because this is being recorded. All the experts must be consulted. Whatever you had yesterday meeting, okay, no problem. But one by one, the experts must say something, whatever they want to say. Okay, so that must come in the minutes of today's BO's meeting. Okay. ठीक है sir, ठीक है. First of all, I would like to invite Dr. Geeta Verma. She is from ANT College. Ma'am, you want to say something? Yeah. I had one suggestion from the first unit. It's the first paper, Fundamentals of Nutrition and HD. Okay. Here
they have, in the very first topic, they have focused on traditional home science, its relevance in the current area, and some eminent home scientists. They have named also few. My suggestion was that more than the home scientists, it is important to let the students be introduced with the institutions and agencies of home science, like NIPSID, National Institute of Public Cooperation and Child Development we have in Delhi, ICCW, ICMR, which does so much of work for our RDA and all. The students should be aware of these agencies and institutions which are an integral part of home science. The experts or some eminent personalities can be covered within it. So my suggestion was to replace the eminent people with the eminent agencies of home science. So that comes under area, no? Okay. Course on the basis of the course content course. Okay, that you can do. Okay. Yeah. So, Replacing home scientist, the word home scientist, instead of that, we'll keep it Indian institutions. So Indian Home institutions will cover the whole thing. They'll cover But the the whole student- scientists also. And even the colleges which are offering the good institutions of home science and the other agencies, so that students are aware of it. Institutions will cover everything. Yes, institutions will cover everything. Okay. So if all of us agree, that change can be incorporated. निर्मला मैडम, आप गीता मैम और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी के लिए this was the one which was there in my mind. Let Nirmala ji say other. I'll call Dr. Nirmala Singh. She is from Jwala Devi College, HOD. Okay. निर्मला जी, आपकी चाहेंगे, आपकी राय? सर, BA थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th होम साइंस पेपर 1, BA थर्ड ईयर का सेमेस्टर 5th होम साइंस पेपर 1 सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स में, सर इसमें जो 7th और 8th है, ये वाटर और लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग ऑफ फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स, इसमें सर हम मतलब चाहते हैं कि इसमें सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इसमें कहीं भी नहीं रखा गया है। और स्टोरेज एंड केयर ऑफ फैब्रिक, ये दो चीज सर इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। Okay. हेलो, हाँ निर्मला जी, सुनाई देता, बताइए। हेलो, I also agree. आवाज Okay, नहीं आ one रही? नहीं आ रही, your voice is coming very clearly, no problem. ओके, मैं भी कहना चाहूंगी, जो निर्मला जी कह रही हैं वो थोड़ा होना चाहिए वहाँ पे, जो Then you टॉपिक है। can do on the basis of the course content change. Okay, no problem. No, Content- it will be replaced. चेंज करना पड़ता है। हाँ, क्यों दीप्ति जी, it will be replaced, ना? हाँ, रिप्लेस it कर will be दीजिए। will replacing the 7th and 8th में जो है water and laundry will replacing by this selection, storage and identification of fabric, then selection of fabrics for clothing, care and storage of clothing and identification of fibers. आइडेंटिफिकेशन तो है मेरे ख्याल से। Identification अगर है तो हो सकता है repeat हो रहा हाँ, हो। केवल We can आइडेंटिफिकेशन we can add स्टोरेज ठीक है, होना You चाहिए। can, you can, Care and storage। we can add something. That is the thing. Course content, we can add something. Instead of that, we are replacing with something which is of equal importance, even more Okay. important. Right. Okay. So that can be done, sir, no problem. Okay. After that, I would like to call Dr. Ranju Kushwaha. She is from Johari Devi College. She is also head of the department there. Ranju जी, जी। आप अपनी सजेशंस प्लीज जी, दीजिए। जैसा कि अभी गीता वर्मा जी ने कहा, जहाँ पे जो फर्स्ट पेपर है उसमें जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन को ऐड किया जा सकता है और करना भी चाहिए,
जैसे उसके बारे में स्टूडेंट पढ़े और जाने कि हाँ क्या है, और न्यूट्रिशन के फील्ड में कौन सा संस्था, कौन सी इंस्टीट्यूट कौन सा काम कर रहा है, किस तरह से कार्य कर रहा है, तो इसकी जानकारी बच्चों में होनी चाहिए। तो मैं सहमत हूँ इस बात से, जैसा कि कल डिस्कशन हुआ था, हम लोग साथ में किए थे। और मैम जो लॉन्ड्री वाला सेक्शन है वो भी हम लोग चाहेंगे, जैसा निर्मला जी कह रही हैं, तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं तो कर दिया जाए, जैसे केयर एंड स्टोरेज है। और मेरा बाकी तो जो भी होगा डिस्कशन। दीप्ति जी। सर एक चीज और है, बोलिए। ये बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th होम साइंस पेपर 3 कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मिंग चेंज का प्रैक्टिकल में सर ये 3rd यूनिट है, प्रिपेयर एंड लर्न द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें सर प्रिपरेशन में सारे ऑडियो विजुअल एड्स नहीं बनाए जा सकते। 7 ये जो हमारा लैब पीरियड 7 है उसमें सारे ऑडियो विजुअल्स नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इसमें प्रिपेयर एनी 2 ऑडियो एड्स, ये प्रिपेयर लर्न द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स हो सकता है, लेकिन प्रिपेयर एनी 2 ऑडियो विजुअल एड्स, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा है सर। फिर 7 उसमें आवर्स में सारे को समझाया जा सकता है, लेकिन प्रिपरेशन 2 की हो सकती है। ये प्रैक्टिकल में है निर्मला जी? हाँ प्रैक्टिकल है, बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th होम साइंस पेपर 3 कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मिंग और वो चेंज। इसमें जो 3rd यूनिट है इसमें प्रिपेयर एंड लर्न द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, तो लर्न द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड प्रिपेयर एनी 2 ऑडियो विजुअल एड्स। और इसमें तो सारे अगर प्रिपेयर पहले होगा तो इस सारे ऑडियो विजुअल एड्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, लेकिन अगर इसमें ये हो कि लर्न द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स और प्रिपेयर एनी 2 ऑडियो विजुअल एड्स। और सर इसमें वैसे भी छोटे लेवल पर हम लोग फाइल में तो सभी बनवाते हैं, क्योंकि उनको समझाना होता है। ओनली थिंग है कि इलैबोरेट, निर्मला जी का कहना ये है कि इलैबोरेट फॉर्म में खाली 2 बनाए और फाइल में सैंपल सबके लगाएंगे। ओके फाइल में सारे लर्न तो सब कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन में सर ऑडियो विजुअल एड्स को प्रिपेयर करने में ये 7 जो आवर्स हैं फिर वो सारे करने के लिए तो फिर वो कम हो जाएंगे। इसके लिए तुम ये कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा हर लड़की को, हर स्टूडेंट को अलग अलग दे दो, थोड़े थोड़े बनाने के लिए। हाँ जी, अच्छा। हर स्टूडेंट को 2-2 दे दो, तो दिस वे द होल class will make, so you will have the all different kind of audio visual aids. yes, that's why we'll write any 2, prepare any 2. लेकिन वो एग्जामिनेशन, अच्छा हाँ ये अलग अलग हो जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर सारे ही प्रिपेयर कराएंगे तो वो तो फिर लड़कियों को कोई भी आ जाएगा, तो वो हर लड़की को फिर सारे ही आने चाहिए। नहीं, ऐसे वो सीख लेंगे ना, सब देख भी लेंगे प्रैक्टिकली। अच्छा, फाइल में बनाएंगे गर्ल्स। करेक्ट है, मैम का सजेशन करेक्ट है, फाइल में तो बनाएंगे ही ना। हाँ, इलैबोरेट एनी 2 कर देते हैं, तो जैसे मैम ने कहा अलग अलग बनेंगे तो सभी को एक आइडिया हो जाएगा। इलैबोरेट एनी 2 कर तो देख तो लेंगे ना सबका। हाँ करेक्ट, बनते हुए तो देखेंगे ना। A brief knowledge they will be getting. Okay, all right. मेरा एक और सजेशन था, कैन आई से दीप्ति मैम? Yes. हमारा सेमेस्टर 2 में प्रैक्टिकल है टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग का। बिल्कुल, सेमेस्टर 2 के बाद प्रैक्टिकल है, उसमें काफी सारा स्विंग, स्टिचिंग, ड्राफ्टिंग इंट्रोड्यूस किया है, विच इज फेयर एनफ। पर कल की मीटिंग के बाद भी एक डिस्कशन हुआ था, उसमें एक बेबी फ्रॉक बनाने का है, बेबी फ्रॉक विद स्लीव्स एंड ऑल। तो उसमें कल के सजेशन में ये आया था कि उस बेबी फ्रॉक को हम ऑप्शन कर दें विद लेडीज पेटीकोट। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हमारे बच्चों ने जब पेटीकोट बनाने सीखे तो कुछ बच्चों को उसमें रोजगार परक भी नजर आया। अपने घर के लिए तो बनाया ही बनाया, वो उनके लिए इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी भी बनी
they started providing to the shops also. So considering it to the national education policy, ये इसमें एक एंगल आ जाता है कि ये लोग उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं. तो हम लोग चाहते थे कि ऐड तो और नहीं करें क्योंकि सिलेबस वैसे ही बहुत हैवी है, पर ऑब्लिक कर दें. So those who want to teach frock may teach frock, and जिन जगह लगता है कि पेटीकोट सिखाकर बच्चों को फायदा होगा, तो हम लोग चाहते हैं उसको और में कर दें. बाकी लोग इसमें अपनी क्या सजेशन देना चाहेंगे? ठीक है, क्योंकि वो इस पे ज्यादा बच्चे वो इसको ज्यादा यूजफुल है ये, मतलब और इजी, आसानी से अपना कोई भी वो कर सकते हैं ये लोग. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है इनका इसमें. वैसे भी ये थोड़ा सा सिटिंग में भी आ जाता है. और ठीक है, मेरे हिसाब से भी आई एग्री विद दिस. तो पेटीकोट कैन बी, यदि सहमति है तो ठीक है, होना चाहिए, ऐड कर सकती हैं इसको. तो सिलेबस बढ़ेगा भी नहीं, जितने नंबर ऑफ है उसी में हो जाएगा. तो इट कैन बी एडेड. इंस्टेड ऑफ फ्रॉक दे कैन प्रिपेयर अ पेटीकोट आल्सो इफ दे वांट. ईसा जी आपकी ठीक है. मैं अभी जो हमारी बाहर से एक्सपर्ट आई हैं, BHU से डॉक्टर इंदिरा बिश्नोई जी, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके कोई सजेशंस हैं तो मैडम प्लीज यू आर वेलकम टू शेयर विद अस. थैंक यू. नमस्कार मैम. अरे मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके यहाँ BA BSc होम साइंस ऑनर्स भी चलता होगा, BSc साइंस भी चलता होगा. ऑनर्स नहीं है, ऑनर्स नहीं है मैडम. ऑनर्स नहीं है. अच्छा, और BSc मतलब स्टूडेंट साइंस के नहीं रहते? BSc होम साइंस इंटीग्रेटेड नहीं विद होम साइंस, जहाँ पे चलता है 2 साइंस सब्जेक्ट प्लस 1 होम साइंस. नहीं वो नहीं है मैडम, केवल आर्ट के सब्जेक्ट्स के साथ होगा. चाहे सेल्फ फाइनेंसिंग भी हो. लेकिन बहुत सारे सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में देख रही हूँ मैं कि उन्होंने साइंस के साथ भी BSc होम साइंस वो रख रखा है. नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं, अगर इन फ्यूचर तुम्हारे यहाँ कभी होता है तो व्हाई नॉट टू राइट ऑन द सिलेबस BA/BSc होम साइंस. Then if any subject student आप ठीक कह रहे हैं. कल भी यही बात हुई थी कि सिलेबस इतना इलेबोरेट हो गया है कि इट इज एक्चुअली मैचिंग BHSC होम साइंस. नहीं, not BHSC, not that way. It is like that. It is not very big syllabus. Actually, the students will take 2 more science subjects. It is in BHU. For the arts student, they take 2 art subjects and 1 home science. Or other is a language compulsory, whatever is this. For science, they take 2 science subjects and 1 home science. Similarly, you may also have in your university or in some affiliated college or self-financing college. I have observed a number of self-financing colleges in university, Faizabad University, Purvanchal, they have started. So why not to add BA/BSc home science syllabus? So in future, if the demand comes, you don't have to do again the same work. Ma'am, that is to be decided by the university, I think. Okay. University give our suggestion to the university and decision. BSc home science means doesn't mean it is a BSc home science composite. It will also have 2 more science subjects. Okay, science Right. and I've noted it down. It is a very good suggestion. Shall I say something? It's a very good suggestion. But the thing is whether it should be BA or BSc. It shouldn't be oblique. It should be categorically specified. So this suggestion can be put forward to the university for BSc home science composite. That's it. Not BSc composite home science. If any students wants to offer home science along with the 2 science subjects, this syllabus will remain same. Therefore, you require to write oblique. Syllabus will remain same whether they are the science student or the arts student.
uniform. Obviously doesn't come. In any case, if BSc students will offer, suppose they are taking zoology and botany, and along with third minor subject they are taking this, as it is, they will get BSc degree only, because they are doing In majors our in. university, like I tell you, They can take major we as have- major subject also. like we have got the combination botany, chemistry, home science, zoology, chemistry, home science, psychology, chemistry, home science. We have got such combinations. Okay, right. BHU, madam. BHU. Right, we can But- also do that way. There is no Main- problem. New education But, policy is relaxation, madam. No, there is relaxation in new education policy. You can do that. You can suggest. We'll give our suggestion. Okay, okay. Relaxation to है new education policy में about You can selection give of the subjects. suggestion to the There are university. more importance. It must be noted down separately. I have noted Whatever down. expert from BHU, that is very nice suggestion. BA/BSc, okay. Science. Okay, that much is my suggestion. That's nice. Right, Okay. thank Go you so ahead. much. Thank you. Any other thing which we want to discuss? There are few very minor mistakes, like one of the names in references is not correct. So But that's the other things you have to look after it. References are. एक्सटेंशन के एक राइटर हैं, उनका नाम AN सूपे लिखा है, जबकि एक्चुअली ही इज SV सूपे. तो Okay. वो हम ठीक कर देंगे. Yeah, it can be done. This That is you on can do, page that you can 17. Okay. Change दीदी जी, है. कल यूनेस्को को लेके भी कुछ डिस्कशन था. There was some suggestion for UNESCO also. को हटा के उसकी जगह कुछ और किया जाए. तो I'll have to check where it is. निर्मला जी, आपने भी तो नोट किया था शायद यूनेस्को को लेके जो सजेशन था. Okay. गीता मैम, आपने नोट किया हुआ है? I have only noted to UNESCO to be removed. उसका कोई relevance नहीं था वहाँ पर. UNESCO, but instead of that, what we want to keep, that I have not noted. उसका So, relevance any- नहीं आ रहा था उसमें. It was somewhere in extension only. इसका जो ये इसी में सॉरी BA थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th होम साइंस पेपर 2 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लानिंग, इसमें कुछ रीसेंट प्रोग्राम्स ऐड करने के लिए था, जैसे कन्या सुमंगला योजना, जननी स्वास्थ्य योजना और उज्ज्वला योजना. ये रीसेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसमें ये ऐड करना था. और क्योंकि NGO एंड अदर्स में कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कम्युनिटी सर्विसेज में जितने भी हैं NGO, WHO, KR, यूनिसेफ, और इसमें यूनेस्को का उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था. और ये Instead of तीन- UNESCO, we can focus on these योजनास जो recent है और जिनके बारे में females को पता होना चाहिए. फोर्थ But इनमें से Excuse me, एक ही को किया जाए तो सुनो। बेटर होगा. So no, excuse me, if you tell student UNESCO also, what is UNESCO, what it is function, what is there, what is wrong with that? Tell them in brief what is there. Mm-hmm. Okay. In spite of removing it, you can just brief the student. At least they will know what is this organization. Okay, ma'am. Yesterday ma'am. the thought was to focus more on Indian योजनास and Indian agencies. ठीक है, लेकिन you internationally at least you can give a briefing to them. There is Okay. nothing wrong in it. Okay. Okay. Okay, ma'am. Then ठीक we है, can skip that. रहने दिया जाए उसको, हाँ, ठीक है, उसको let us गीता जी, leave it like that ऐसे ही only. रख देते हैं. रहने दिया. रखो उसको, रखो. उसको ऐसे ही रहने देते हैं. मैडम का सजेशन भी ठीक है. जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको रखना चाहिए, होना चाहिए इसमें. ठीक है मैम, ऐसा तो मुझे भी लगा. नेशनल और स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं उसको आप इसमें और ले सकती हैं. In spite of naming them, you can do recent development
programs conducted by central government as well as state government. तो जब भी पढ़ाओगे सारे recent पढ़ाते रहोगे. In spite of writing the name, write recent development programs of government. Government means central government, oblique, as well as state government. ऐसे कर दो. मैं ऐसे ही हो सकता है 10 साल के बाद ये पुराने प्रोग्राम हो जाए और नए आ जाए. एग्जैक्टली और शायद ये कहीं प्रैक्टिकल में दीप्ति जी आया भी है, एक बार चेक भी कर लीजिएगा, डबलिंग ना हो. हाँ, ये प्रैक्टिकल में आ चुका है, जहाँ रिसर्च प्रोजेक्ट में वहाँ भी आया है ये. और मतलब इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड द रीसेंट योजनास लिख के रख लें अगर इट्स ऑलरेडी देयर. उसमें नाम ना लिखा जाए, केवल लिख दिया जाए कि स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो इस तरह से डाल के उसमें डेवलपमेंट जो बाद में आते रहेंगे वो भी इंक्लूड हो जाएंगे. हाँ, वो भी जैसे रिसेंट आते रहेंगे उसको हम लोग बस स्टेट गवर्नमेंट का जो है उसको उसमें डाल सकते हैं केवल लिख करके. ठीक है, ओके. ठीक है. तो बेसिकली जो हम लोगों के कल भी डिसाइड हुए थे और अभी जो हमारे एक्सपर्ट्स ने राय दी है वो भी हमने नोट कर लिया है. तो जो चेंजेस हुए हैं मैं उनको एक बार पढ़ दूं. ओके. एक तो हमारा BA Part 1 सेमेस्टर 1 की यूनिट 1 में चेंज हुआ है, जहां होम साइंटिस्ट को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं बाय इंडियन इंस्टीट्यूशंस. ओके. उसके बाद BA सेमेस्टर 2 के प्रैक्टिकल में हम लोग पेटीकोट ऐड कर रहे हैं विद फ्रॉक. और हम ऑब्लिक कर रहे हैं. ऑब्लिक कर रहे हैं. उसको और कर रहे हैं कि दोनों कंपलसरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और कर रहे हैं. और अच्छा, ठीक है. एंड कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी. सिलेबस आ जाएगी. सिलेबस बहुत हैवी है. हैवी है. हाँ, ठीक है. वही मैं कह रही हूँ कि और ही रखिए, एंड नहीं करिए. और ठीक है, और कर दिया है वो. हाँ, ठीक है. फिर उसके बाद थर्ड चेंज जो हम लोगों ने किया, अभी नोट किया, ये BA सेकेंड ईयर के सेमेस्टर 3 में, ये पेज नंबर 14 पे है, यूनिट 1. इसमें नहीं, ये डिस्कशन ही नहीं हुआ है. ये जो है इसमें जो यूनिट 1 में कुछ दिया गए हैं 3 चीजें जिसमें हम चॉइस, तो एक जगह हमने और ऐड करना है. ये गीता जी एक मिनट देखिए अपने उसमें. ये डिस्कशन कल हुआ था लेकिन आज इसके बारे में बात शायद नहीं हुई है अभी तक. वो HD के प्रैक्टिकल में है थोड़ा सा. ये प्रैक्टिकल में है, तो प्रैक्टिकल में और ऐड करना था. सम माइनर थिंग, वो उसको स्किप कर दे. ऐसे तो माइनर थिंग, क्योंकि उसमें एक जगह उन्होंने वो कुछ एल्बम बनाने की बात करी है डेवलपमेंटल टास्क की, और उसके बाद फिर से वही चीज दूसरे फॉर्म में रिपीट हुई है. वही आ रही थी, वो रेपिटेशन था, इसीलिए हम लोगों ने रेपिटेशन था, इसलिए हम लोगों ने और ऐड करा था. दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल. हाँ, ठीक है, तो उसको मैंने स्किप कर दिया. देन पेज 17 में वो जो मैंने अभी बताया कि वो राइटर के नेम में गलती है. सुपे ए लिखा हुआ है लास्ट वाले में, इट शुड बी सुपे SV. तो ये वी आर वेरी श्योर अबाउट इट. आई हैव आल्सो चेक्ड ऑन द नेट. तो इनका नाम सुपे SV है. इनकी बुक देखी हुई है, मेरी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है. तो इसको हम लोग थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेंगे. देन ये हमारे BA थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 पेपर 1, दिस इज पेज 21. इसमें जो निर्मला जी ने अभी बताया था 7th और 8th में, इंदिरा मैडम को थोड़ा सा जरा ब्रीफ कर दीजिए तो देखिए उस पे क्या कहते हैं कि वो ठीक है कि नहीं. तो मैं उनको थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल. ये मैडम BA थर्ड ईयर के सेमेस्टर 5 पेपर 1 पेज नंबर 21 में अगर आप देखेंगे, पेपर का नाम है सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स. इसमें क्या है कि लास्ट में जो दिया गया है 7th और 8th यूनिट, इसमें 7th यूनिट वाटर है जिसमें रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर एंड ऑल ये सब है. और 8th यूनिट जो है दैट इज लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग, जिसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं रखना चाह रहे हैं. ऑल ऑफ अस उसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं. उसकी जगह कर दीजिए. ये थर्ड ईयर में है. ये थर्ड ईयर लास्ट में है. किस चीज से थर्ड ईयर में है.
टेक्सटाइल का पेपर, सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स। इसकी जगह जो ज्यादा यूजफुल चीजें हैं, सिलेक्शन, स्टोरेज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैब्रिक्स। फिर उसमें सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स, ये यूनिट का नाम हो जाएगा। लाउंड्री कराओ नहीं, लाउंड्री ड्राई क्लीन के बारे में बता दो। वो मैम केयर में आ जाएगा, केयर ऑफ फैब्रिक्स में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग Actually, पूरे उसमें सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स कहीं भी इंक्लूड नहीं हुआ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स। और केयर में laundry भी आ ही जाएगा, केयर एंड स्टोरेज। इट्स नॉट आइडेंटिफिकेशन दीप्ति मैम, केयर एंड स्टोरेज। हाँ, केयर एंड स्टोरेज में ऐड कर लेना एज ए टॉपिक। स्टोरेज को हमने दरअसल जो लिखा था, एक बार इसको सुन लीजिए तो देखिए, मैंने इसमें ए और बी किया हुआ है। ए इज सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स फॉर क्लोथिंग एंड बी इज केयर एंड स्टोरेज ऑफ क्लोथिंग। इसको इसके अंदर किया है, ये ए और बी कर दिया था, बी वाज केयर एंड स्टोरेज फॉर क्लोथिंग। तो मतलब ये 7th टॉपिक फाइबर्स था जो शायद ऊपर आ गया है, आई एम नॉट वेरी श्योर, तो देखना ये पड़ेगा। यूनिट 7 में किया है आपने दीप्ति दीदी, आपने यूनिट 7 में किया वाटर की जगह। टॉपिक 7 नहीं, ये यूनिट लॉन्ड्री वाला, यूनिट 8। अच्छा 8 ठीक है। दीप्ति जी, इसको एक को टॉपिक 7 कर दीजिए, एक को टॉपिक 8 कर दीजिए। ए और बी की जगह ऐसा कर देते हैं। इतना बड़ा टॉपिक नहीं कि इन दोनों को अलग अलग टॉपिक बनाओगे, इतना बड़ा कहाँ टॉपिक है। यूनिट तो ऐसे डिवाइडेड है ना, तो यूनिट में तो डालना पड़ेगा अलग अलग टॉपिक में। 2 यूनिट बना दो बस, एक टॉपिक में एक चैप्टर जो भी होगा 2 सब यूनिट कर दो बस, एक स्टोरेज कर दो। मैम वी कैन नॉट कट द नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट। उसमें हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, ना ही नंबर ऑफ लेक्चर्स चेंज कर पाएंगे। इनमें 7 और 8 लेक्चर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग को देखना होगा। ठीक है, फिर करो। एक बात ये और अच्छा, एक बात, जब अपना सिलेबस ये कर रहे, ये और ध्यान रखो कि बच्चों के जो टीजीटी का उसका एग्जाम होता है, पीजीटी, ये सब, कि ये सब क्या क्या चीजें आती, कुछ ऐसा तो नहीं स्किप ना हो जाए, ये ध्यान रखना। एग्जाम होते हैं उनमें जो आता है। हाँ बोलो। एक चीज मैम, ये सिलेक्शन ऑफ गारमेंट्स भी पूरा का पूरा छूट रहा है। डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों के लिए जो गारमेंट सिलेक्शन के जो पॉइंट्स हैं कि किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, उसको हम इसमें इसी में ऐड कर सकते हैं। फैब्रिक्स का तो आ गया, सिलेक्शन ऑफ गारमेंट्स डिफरेंट एज ग्रुप के लिए ये नहीं आया है, तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट इसी में एक यूनिट में इसको ऐड करना बहुत जरूरी है। हम लोग निर्मला जी फर्स्ट वाले को सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स कर सकते हैं, और 7th यूनिट को ना इंस्टेड ऑफ वाटर, हाँ 7th will be selection of fabrics and garments and 8th will be storage and care, क्योंकि और इसमें मेन फोकस हम लोग हाउस होल्ड स्टोरेज रखना चाहेंगे कि कम लागत में आप कैसे गारमेंट्स की स्टोरेज एंड डिफरेंट सिल्क का स्टोरेज एंड लिनन का स्टोरेज एंड ऑल दैट। और जब केयर आएगा तो केयर में लॉन्ड्री आ ही जाएगी, लॉन्ड्री उसका पार्ट हो जाएगा। तो हमने हटाया कुछ नहीं, बस और एक तरह से ऐड ही हो गया, क्योंकि लॉन्ड्री तो हमारा है ही है में, प्लस हमने केयर में और भी बहुत कुछ आ जाएगा, एंड वी हैव एडेड स्टोरेज आल्सो। तो ये हमारा 8th यूनिट हो गया। और 7th यूनिट जो है वो सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स फॉर क्लोथिंग, क्योंकि उसमें 7 लेक्चर्स है हम लोगों के, तो जब हम एंड गारमेंट्स भी कर देंगे तो वो हो ही जाएगा। तो इसमें डिफरेंट एज ग्रुप भी लगा रही है, क्या लिखा जा रहा है? डिफरेंट एज ग्रुप लिख रहे हैं क्या? अच्छा, नहीं हमने लिखा तो नहीं है, अंडरस्टूड है, ऑब्वियसली मान लिया। अच्छा, तो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड ही अंडरस्टूड कुछ नहीं होता, जो लिखना है लिख दो, कोई कुछ पढ़ाएगा कोई कुछ पढ़ाएगा, सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक एंड गारमेंट्स राइट कर दो ना, डिफरेंट एज ग्रुप्स, मेक इट क्लियर, लिख दो, कोई हर्जा नहीं है। सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक डिफरेंट एज ग्रुप लिखने से ये ब्रॉड हो जाएगा मैम, थोड़ा सा डिटेल में चला जाएगा, ठीक है। वो इसलिए कर रहे थे कि फैब्रिक्स के साथ एज ग्रुप नहीं आ रहा था, पर ठीक है, फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स फॉर क्लोथिंग ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स लिख दूं? हाँ, इन डिफरेंट एज ग्रुप्स फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट एज ग्रुप्स, यस। वो फॉर 2 बार आ रहा था, तो वो
फॉर क्लोथिंग में हटा दे रही हूँ। नहीं और तो different- दीदी इसमें दीप्ति दीदी इसमें ए और बी दो कर दीजिए ना, एक फैब्रिक्स का सिलेक्शन हो जाएगा और एक डिफरेंट एज ग्रुप फॉर ये गारमेंट्स के लिए बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों को एक साथ फैब्रिक और गारमेंट को एक साथ नहीं कर सकते। नहीं, Correct ऐसा कह है रही है, कि क्योंकि- देखिए 7th यूनिट में 2 पॉइंट्स दिए भी हैं, ए और बी किया हुआ है, दोनों उसी को तरह हम replace लोग कर भी, दीजिए। हाँ, हाँ उसी को रिप्लेस कर दें ए और बी करके। ए और बी करके हाँ। एक फैब्रिक का अलग हो जाएगा और गारमेंट का अलग हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स, हाँ, एक सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स हो जाएगा और एक हाँ। हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ गारमेंट्स फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, बस अब क्लोथिंग वर्ड की जरूरत नहीं है। 1 मिनट में हाँ। नोट कर लूं। हाँ, हाँ। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि इसमें सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स फॉर क्लोथिंग ही लेना है कि सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स जैसे हम लोग हाउस होल्ड लिनन भी लेते हैं उसमें भी, या केवल उसको क्लोथिंग? ओपन छोड़ दीजिए, जब Fabric फैब्रिक आता केवल है तो फिर clothing हाउस होल्ड fabrics लिनन भी आएगा। वो तो सबका हाँ, पेपर तो क्लोथिंग ही है, तो हमने इसको सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स 1 कर दिया है और सेकंड इज केयर एंड नहीं 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 अभी गारमेंट्स का सिलेक्शन ऑफ Care- गारमेंट्स फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। ये 8th यूनिट में इसमें ये लिख सकती दीदी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ गारमेंट्स फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। फैक्टर्स, हाँ, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ ये, Garments. केयर भी है, हाँ केयर भी लेना। नहीं केयर वाला तो फिर नेक्स्ट उसमें आएगा, इसमें ये दो Care 8 यूनिट है। अब हम 8th पे आ गए। 7th तो हाँ, हमारा 8th डिसाइड 8 is care and storage of ऐसे care and storage of दीदी हम लोग ने ये टेक्सटाइल में कहीं फैशन आया है, मैंने ध्यान नहीं दिया है, पर फैशन का कहीं कुछ नहीं है। नहीं फैशन वो नहीं है। फैशन का कुछ नहीं है, फैशन साइकिल भी का नहीं नहीं है। है। मैं सोचा कुछ कुछ पीजी के लिए MA छोड़ दे, छोड़ते हैं, अच्छा अच्छा, MA के ठीक लिए है छोड़ते हैं। हाँ ठीक छोड़ है दे, ठीक है, ठीक पीजी में पढ़ा लेंगे। हाँ, This is ठीक care and storage ठीक। of household linen. हाउस होल्ड लिनन नहीं दीदी, क्लोथिंग करिए। लिनन में तो बेड कवर्स और सब बेडशीट आ और जाएंगे, सोफा कर्टन वगैरह सब आ जाएंगे फिर तो। अब आना है। पेपर तो क्लोथिंग है ना। पेपर हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो तो 8th में मैं लिखती हूँ केयर एंड स्टोरेज ऑफ क्लोथिंग, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग। मुझे लगता है केयर एंड स्टोरेज ऑफ क्लोथिंग होना चाहिए, फैक्टर्स क्लोथिंग ही होना चाहिए, क्लोथिंग ही होना चाहिए। जो पहले हम लोग थर्ड ईयर में कोर्स भी हम लोग के हैं, वो उस तरह से अभी तक तो थर्ड ईयर में पढ़ाया ही जा रहा है वो हमारे हाँ, यहाँ तो। निर्मला जी, ये- निर्मला जी कल एक इनोवेशन एंड डिफ्यूजन पर भी कुछ बात हुई थी, एक्सटेंशन नहीं का। नहीं वो नहीं, उसको नहीं, वो नहीं, इसमें नहीं है। वही बात वो आ गई add कि उसको नहीं। पीजी के लिए छोड़ देते हैं। हाँ वो नहीं, ऐड इसको नहीं, कुछ नहीं नहीं रेलेवेंस नहीं आ रहा था, कुछ ऐसी बात थी। नहीं। हाँ वो नहीं, उसमें वैसे है, उसका कंप्लीट है, उसमें उसका कोई जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, सिलेबस ऐसे एज इट इज काफी वाइड है, तो नहीं छोड़ा है। हम लोग ने थोड़ा कुछ भी नहीं छोड़ा है। जो पीजी में पढ़ा रहे थे वो भी इसी में आ गया है। रिसर्च भी आ गया थर्ड ईयर में। थेराप्यूटिक पूरा आ गया। तो ये तो अभी हम लोग पीजी में पढ़ा रहे थे, तो वाइड तो हो ही गया है सिलेबस। और जो चीज हम पूरा साल में पढ़ाते थे वो एक सेमेस्टर में पढ़ाना होगा, ये भी एक बात आ गई है। और किसी की कोई राय हो तो बताइए, इसमें और क्या कर सकते हैं। 30% का हम लोग को मिला है, लेकिन Relaxation है, 30% ठीक है, हम लोगों का आराम से, ये बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आया है सर। संजय सर, हाँ, ये जो 1 मिनट दीप्ति जी, शैल आई स्पीक। ये जो मैंने बता रहा थे ना आप लोगों के डिफरेंट फीडिंग मेथड्स इन 6th सेमेस्टर थर्ड ईयर में, तो उसमें और डिफरेंट फीडिंग मेथड्स तो सही है और ओरल फीडिंग भी सही है, और आपका वही रहने दें, ट्यूब फीडिंग भी रहने दें, बस इसमें जो है एक पैरेंटल फीडिंग ऐड करनी है, 3rd पॉइंट। ये हाँ जी, आपने बोला था मोड भी, तो बोला था आपने ना मोड ऐड करना। मोड भी रह सकते हैं, लेकिन जो मैंने फिर देखा तो डिफरेंट फीडिंग मेथड्स हैं, तो इट्स ओके, डिफरेंट फीडिंग मेथड्स।
oral feeding, tube feeding, and the third point should be parenteral feeding. PARENT. ये हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल स्पेलिंग में प्रॉब्लम नहीं है Parenteral feeding. It's- बस उसको ऐड कर लेंगे तो इट विल बी कंप्लीटेड समहाउ. ओके. तो वो ट्यूब फीडिंग एंड ऑल रहने दें और उसके साथ वो में रहना- पेरेंटल हाँ। फीडिंग कर दें. तो ये भी एक चेंज आ गया. तो अब संजय सर बताइए, ये चेंजेस तो हम लोगों के आ गए. तो Okay. अब आगे एक मिनट, शुक्ला जी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में. हाँ यस हाँ जी यस. सर, बिल्कुल आपकी राय बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए. हाँ जी सर बताइए. ये जो है जो आपका प्रपोजल है काफी अच्छा है जो है. और एक जो मैडम वाली मैडम ने बताया कि अगर इसको अकेडमिक हायर बॉडी के लिए रिकमेंडेशन जाना चाहिए कि होम साइंस जो है साइंस फैकल्टी में भी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए. हाँ वो लिख लिया है. हाँ. बिल्कुल सर, हम लोग तो शुरू से चाहते थे क्योंकि हम लोग सभी ज्यादातर जो है वो BHSC या BSc होम साइंस पढ़े. Right. हम लोगों की Go for graduation है. science. उसको तो हम लोग यहाँ वही Especially with चीजें this syllabus. नहीं पढ़ाई सकती है. और तो मैंने सुना पूरा डिस्कशन आपका है. ठीक है, जो तैयारी कर ली गई अभी सिलेबस बिल्कुल ठीक है. Okay. So that suggestion already has been noted by them. नोट कर लिया है ना आप लोगों ने? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सर. नोट कर लिया. हाँ. निर्मला सिंह नोट कर रही है ना, मुझे लग रहा है. हाँ जी सर, हाँ नोट कर रहे हैं. हाँ नहीं, हम लोग मैं भी कर रही हूँ. तो निर्मला जी को भी बोला है, वो भी कर रही हैं, मैं भी कर रही हूँ. So, I think your just relaxation on the basis of 30% is not going to have its complete, you can say, wing. Near about 5 or 10% it is going to be. How much? Yes, sir. इतना ही Yes, है sir. सर. अब एग्जैक्टली तो बताना बड़ा मुश्किल है कि कितना है. जब उसको सामने आएगा तो देखेंगे. बट वो 10 इतना भी भी लग नहीं रहा है. है. बहुत कुछ भी नहीं. बहुत लंबा सिलेबस. अरे नहीं, ठीक है. That because सिर्फ under एक ही 30 जगह हमने वो कुछ चेंज करा है, थोड़ा सा ज्यादा है, वो भी रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया है. That's बाकी nice, कोई that's ज्यादा nice. चेंज नहीं है. जल्दी So then you can wind up. देखिए बात कर लीजिए. और भी anybody wants to give suggestion, then invited, and otherwise you should wind up. तो कल साथ सब लोग डिस्कशन की तो उसमें कुछ ज्यादा थी. सर हम लोगों ने बहुत लंबे डिस्कशंस किए थे हाँ, पूरे हम होम लोग ने भी कल साइंस. डिस्कशन की है, उसमें तो कुछ ऐसा. कल हमने you- गूगल मीटिंग रखी थी. Okay, most of them they are having pre-meeting along with their experts, and then the best comes of that, and that is like the same thing you also did at your disposal so far. So that is the best outcome. सर आपकी आवाज कट रही है, थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही. हेलो, अब आई आवाज? हेलो, हाँ जी, हाँ जी. सर. अब आ रही आई, है आवाज? थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रही है. हेलो. हाँ, आ रही है, आ रही है. आ रही है सर. नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है जहाँ हम लोग रहते हैं. हेलो, हाँ जी, आ आ रही रही है. है, सर. आ रही है सर आवाज. आवाज आई नहीं आई? बोले. आई हाँ जी सर. सर बोले, आवाज आ रही है. आ रही है. प्रॉब्लम रहती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत हो सकती है. सर अभी आ रही है, आप बोलिए. आ रही ना? हाँ जी. हाँ सर, आवाज अब आई? क्लियर आ रही है सर. आ रही है. हाँ. So, you people had, as convener told me, so not to be there, just on the basis of the course content change that has taken place so far. सर And, आवाज ये any- आवाज नहीं आ रही रेंज में. सर थोड़ा सा रेंज में आइएगा, आवाज नहीं आ रही. हाँ, तो मुझे लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ लग रही है. अभी सर आ अब रही है, आई? आवाज सही आ रही है अभी. अभी आ रही है, कहिए सर. बीच में आ रही है सर. अभी कट आ कट रही के. है. आ रही है सर, आप बोलिए. So the best result has taken place on the basis of your Board of Studies meeting today, and I'm thankful to external experts and experts from Kanpur and from outside both. So naturally, so far the change has taken place on the basis of the course of content that is very low. So this is the big sign for this, just the subject home science, and suggestion given by just 2 or 3 experts that BA or BSc, for that the course be there.
So that can be suggested by you to the university, and they will be sending to the higher authorities concerned for that. Naturally, that will be taken into consideration. That's nice. Now over to convener, Deepti ji. Thank you, sir. I think we can wind up the meeting now, or what Right, all right, other right. Absolutely, yes. Okay, all right. Absolutely, yes, exactly. all these changes will have to send to the university. Right. And what about the signatures and all of the experts? You will be sending to them, हाँ. उनको emails कर दीजिएगा ना, हाँ. ठीक है सर, On वो मैं prescribed आपसे pharma. डिस्कशन कर लूंगी कैसे क्या And the करना है. prescribed pharma you must be having at your disposal. Otherwise, you should just have it from university. So they have just uploaded it, prescribed pharma. And suggestions be attached separately. Okay. ठीक है सर, उसी तरह से इसको मैं कुछ प्रॉब्लम आई तो डिस्कशन कर लूंगी आपसे. And now I would like to wind up the meeting. So I would like to thank all the external experts, the internal experts. इंदिरा जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो भी उन्होंने ज्वाइन किया. So thank you very much all of you. And I would like to thank Sanjay Kumar Sonkar sir. He's always very helpful. जब भी कोई प्रॉब्लम होती है बहुत हेल्प करते हैं. And Suvigya ji also. And बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. You are all welcome. Nice meeting you all. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you और all. निशा जी, शुक्ला जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया आज हमारे साथ. और दीप्ति जी, Yes, welcome. for that. Vishesh being convener, I thank and thank all the members, honorable members of the boards of studies from outside as well as from Kanpur. Okay, thank you all. Okay. Thank you. Thank you, sir. Take care all. So thank you. Thank you.